आफ्टरनून स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में भी हमने एक टॉपिक लिया था फ्रैक्शन, और टर्म वन एग्जाम में हमें फ्रैक्शन चैप्टर को सॉल्व करने में, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थे उनको सॉल्व करने में हमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज रही। तो उसके लिए मैं एक बार और आपका एक शॉर्ट रिवीजन प्लान हम कर लेते हैं फ्रैक्शन का। सबसे पहले जैसे कोई नंबर होता है जिसको p बाई क्यू की फॉर्म में आप राइट कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। जिसमें p की फॉर्म में जो नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। ओके। और q के प्लेस पे जो नंबर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ओके। तो नंबर which we can write in the form of p by q is called a fraction. अब यहां पर हम देखेंगे कि कुछ डिफरेंट टाइप के फ्रैक्शंस यहां पर होते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो प्रॉपर फ्रैक्शन। फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज प्रॉपर फ्रैक्शन। A fraction in which numerator is less than denominator is called a proper fraction. For example, 3 by 4. In this number, 3 is numerator and 4 is denominator. So numerator is less than denominator. This type of fraction is called a proper fraction. Second type of fraction is improper fraction. Improper fraction. एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसके लिए। 5 by 3. A fraction in which numerator is greater than denominator. Is called a improper fraction. Here numerator is 5 and denominator is 3. So numerator is greater than denominator. This kind of fraction is called a improper fraction. एक और फ्रैक्शन लेते हैं हम, लाइक फ्रैक्शन। In the like fraction, denominators are same. For example, 7 by 3, 4 by 3, 11 by 3, and 8 by 3. In these fractions, a group of fraction, denominators are same. In every fraction, denominator is 3. So, a group of fraction is called a like fraction. Another type of fraction is unlike fraction. In unlike fraction, denominators are different. For example, suppose 5 by 4, 7 by 8, 6 by 5, 9 by 7. There are 4 fractions, and in all fractions denominators are different. So this fraction are called unlike fraction. एक और फ्रैक्शन है आपके पास यूनिट फ्रैक्शन. In unit fraction,
numerator is 1. Numerator value is 1. Numerator is equal to 1. For example, 1 by 3, 1 by 7, 1 by 11, 1 by 8, 1 by 5. There are 5 fractions, and in all fractions numerator is 1. This type of fraction is called a unit fraction. Okay, and और हम देखते हैं इसके बाद और भी फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन. In the mixed fraction, a group of two numbers. First is whole number, like 2, 3 by 5 is a mixed fraction. So 2 is a whole number and 3 by 5 is a proper fraction. So group of a whole number and proper fraction is called a mixed number. Okay, and देखो लास्ट हम पढ़ लेते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम एग्जांपल ले सकते हैं फॉर 8 by 10 and 4 by 5. ये ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे कह सकते हैं? अगर हम 8 by 10 को रिड्यूस करते हैं या सिंप्लीफाई करते हैं, रिड्यूस या सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? किसी एक ही नंबर से इसको हम डिवाइड अगर कर सकें, जैसे यहाँ पर हम इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं 2 से, तो ये रिड्यूस होकर इस तरह से 4 by 5 में कन्वर्ट हो जाएगा. और सेकंड फ्रैक्शन भी क्या है आपके पास? 4 by 5. तो बोथ फ्रैक्शन हैविंग अ इक्वल वैल्यूज after reducing a first fraction. So the group of fraction is called a equivalent fraction. So there are 7 type of fraction. Proper fraction, a fraction in which numerator is less than denominator. Second, improper fraction, a fraction in which numerator is greater than denominator. Third, like fraction, a fraction in which denominators are same. And unlike fraction, a group of fraction in which denominators values are different. And unit fraction, एक ही ऑप्शन है, इसमें न्यूमरेटर 1 होना चाहिए, डिनोमिनेटर आपका कुछ भी हो सकता है. एंड नेक्स्ट फ्रैक्शन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन, a group of a fraction in which 2 is a whole number and 3 by 5 is a proper fraction. So a mixed number is a group of a whole number and proper fraction is called a mixed number. And finally, last fraction is a equivalent fraction. There are two fractions, 8 by 10 and 4 by 5. When we simplify 8 by 10 into a lowest term, इसको बोलते हैं हम lowest term में convert करना. तो after dividing both numerator and denominator by 2, we got a new fraction 4 by 5. So there are both fraction having a same value. So this pair of fraction is called a equivalent fraction. आगे हम देखते हैं, इस टॉपिक को बढ़ाते हैं. अब फ्रैक्शन से रिलेटेड ही हम आगे देखें, फ्रैक्शन का नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन. नंबर लाइन आप जानते हैं, फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. सपोज करें नंबर है 3 by 4, मान लिया 7 by 4. ये दो फ्रैक्शंस हैं, इनको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, नंबर लाइन को इन नंबर्स के अकॉर्डिंग कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना होगा. जैसे यहाँ पर आप देखेंगे दोनों फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम है 4. तो एक नंबर को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. 0 से 1 के बीच में 3 आपने यहाँ पर पॉइंट्स मार्क किए हैं, जिससे ये एक नंबर जो है 4 पार्ट में डिवाइड हो गया है.
ऐसे ही 1 से 2 के बीच में भी करेंगे, 2 से 3 के बीच में भी ऐसे ही रहेगा, 3 से 4 के बीच में भी ऐसे रहेगा। ओके, अब हम इन नंबर्स को 0, 1/4, 2/4, 3/4, 5/4, सॉरी 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब भी किसी प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो हमें उसके डिनोमिनेटर को चेक करना होगा कि डिनोमिनेटर वहां पर क्या है। तो एक नंबर के हम उतने ही पार्ट वहां पर करेंगे। एक नंबर लाइन पे जो नंबर हैं जिनको हमने रिप्रेजेंट किया है उसको उतने ही पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक और एग्जांपल में एक्सप्लेन करता हूँ आपको, जिससे ये अच्छे से आपको क्लियर होगा। सपोज करो नंबर है 5/3 एंड 8/3। ये दोनों नंबरों में क्या है, डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या है 3। तो एक नंबर को 3 पार्ट्स में डिवाइड आप करेंगे। तो मार्क यहाँ पर है ना ड्रॉ करेंगे आप एक नंबर के बीच में, जिससे ये जो नंबर है एक एक नंबर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये जो नंबर है आपका 5/3 को रिप्रेजेंट करेगा, एंड 6, 7, 8 और ये जो नंबर है 8/3 को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से किसी भी फ्रैक्शन को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, यहां तक क्लियर है आपको? आगे देखते हैं। ये सब हम एक रिवीजन यहाँ पे आपका ले रहे हैं ताकि आपको जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स आपने फेस किया है उसको हम देख पाए यहाँ पर। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक अगर हम यहाँ लेना चाहें तो फ्रैक्शंस को कंपेयर करें हम, कंपेयरिंग द फ्रैक्शन, कंपेयरिंग फ्रैक्शन। अच्छा, एक फ्रैक्शन को कंपेयर करने के यहाँ पर 2 मेथड हैं, बाय एलसीएम मेथड एंड सेकंड मेथड इज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन method. Okay, there are 2 methods comparing 2 fractions. In first fraction, for example, हम ले लेते हैं यहाँ पर 2 फ्रैक्शन ले लेते हैं जिनको हम कंपेयर करके देखेंगे, लाइक 2/3, 3/5। ये दोनों फ्रैक्शंस को हमें कंपेयर करना है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा इसके लिए, 3 और 5 जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम, टेकिंग एलसीएम ऑफ 3 एंड 5। लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको एलसीएम लेना आता है। सबसे पहले इसमें लीस्ट नंबर 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स एंड 5 से डिवाइड करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ these 2 prime numbers is LCM. Now second step, first step LCM हमने फाइंड किया 3 और 5 का, वो 15। नेक्स्ट स्टेप इज 15, यानी कि LCM से फर्स्ट नंबर के डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, क्या नंबर आएगा आपके पास 5, देन मल्टीप्लाइड दिस फ्रैक्शन बाय दिस आंसर। इस फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, ये जो आंसर आया है 5, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 5s are 10, 3 5s are 15। सिमिलर प्रोसेस को यहां भी हम फॉलो करेंगे। एलसीएम से सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को डिवाइड करें, आपको जो आंसर मिलता है यहां पर उससे हम क्या करेंगे, सेकंड फ्रैक्शंस के नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। यू गॉट आंसर 9/15। ये नंबर्स
दोनों फ्रैक्शंस किस में कन्वर्ट हो गए, अब लाइक फ्रैक्शन में। लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट हो गए, दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या है यहाँ पर, सेम है। अब हम क्या करेंगे, इनके न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग न्यूमरेटर्स इज द फर्स्ट स्टेप, टेकिंग एलसीएम ऑफ बोथ डिनोमिनेटर्स। सेकेंड स्टेप क्या रहेगा, एलसीएम से फर्स्ट नंबर के डिनोमिनेटर को डिवाइड किया, जो आंसर है उसको इसको, अच्छा ऊपर नीचे जो मल्टीप्लाई करते हैं इस प्रोसेस को एक नाम हम देते हैं, उसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में क्या होता है, इससे इस फ्रैक्शन को है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। सिमिलर प्रोसेस यहां फॉलो किया। थर्ड स्टेप आपका क्या है, जब ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इनके न्यूमरेटर्स को कंपेयर करते हैं एंड 10 इज ग्रेटर देन 9। सो ये जो नंबर है आपके पास, ये फ्रैक्शंस को फिर से आप यहां पर कॉपी करें और लेफ्ट साइड वाला ही फ्रैक्शन यहां पर क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को फिर से हम लेते हैं, एक और मेथड है आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और यहां पर भी हम देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से 2/3 और 3/5 फ्रैक्शंस जो है यहां पर गिवन है, इनमें से कौन सा फ्रैक्शन यहां पर ग्रेटर है। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा इसमें, एक स्टेप है न्यूमरेटर्स अपने प्लेस पर एज इट इज आपको लेफ्ट न्यूमरेटर लेफ्ट प्लेस पर और राइट न्यूमरेटर को राइट प्लेस पर कॉपी करेंगे एंड डिनोमिनेटर्स क्रॉस प्रोडक्ट होकर अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। ये जो राइट साइड वाला डिनोमिनेटर है वो लेफ्ट न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा एंड लेफ्ट डिनोमिनेटर को हम राइट न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। योर आंसर इज 10 एंड हियर आंसर इज 9। कंपेयर बोथ नंबर्स एंड you got 10 is greater than 9। देन इस फ्रैक्शन को फिर से यहाँ पर नोट डाउन करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे लेफ्ट साइड वाला यहाँ पर प्रोडक्ट ग्रेटर है तो लेफ्ट साइड वाला ही यहाँ पर क्या होगा, फ्रैक्शन ग्रेटर यहाँ पर होगा। तो इस तरह से हम दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करके देख सकते हैं कि दोनों में से कौन सा फ्रैक्शन यहाँ पर ग्रेटर है। तो इस तरह से हम दो फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं। ओके।